کے ساتھ میں گفتگو کرتے رہے، ان کے سوالوں کا جواب بھی کرتے رہے۔ یہ ڈی چوک کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات کے اس پہر کہ جب یہاں سے دھکیل دیا گیا ہے پیچھے کی طرف، انتشار پھیلا رہے تھے جو گڑبڑ کر رہے تھے لوگ ان کو، تو یہاں پر وزیر داخلہ محسن نقوی پہنچے ہیں اور وہ یہاں گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ چل لمحوں بعد وہ بات کریں گے، بالکل تیار ہیں، بالکل آپریشن کے حوالے سے بریف کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے کارروائی کی گئی۔ اس سے پہلے جو میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب کسی طرح کے مذاکرات نہ۔ تو آپ ساروں کا جو یہاں پہ تھے اور جنہوں نے 3 دن سے دن رات یہاں پہ گزاری ہے کا شکریہ، اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ ہمارے لیے اب سب سے ضروری ہے کہ فوری طور پر اسلام آباد کے جو روڈز بند تھیں ان کو فوری طور پر ریسٹور کریں۔ سیل فون سروس، اسکول انشاءاللہ کل کھلیں گے، کل کھلیں گے ویسے اناؤنس چھٹی، ہاں لیکن کل میرا چلیں کل کر پھر پرسوں چلیں، پھر پرسوں سے اسکول کھل جائیں گے۔ اگر کل آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو نہیں کر سکتے انڈو۔ دوسرے نمبر پر سیل فون سروس ہے، وہ بھی سیل فون تو چل رہے تھے مگر جو نیٹ وغیرہ کا موبائل سروس کا تھا وہ والا صبح انشاءاللہ ریسٹور ہو جائے گا۔ کل تک ہم سارا کر کے روڈ انشاءاللہ صبح چالو حالت میں آپ کو ملے گی۔ اور سب سے زیادہ اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، ایف سی این، رینجرز اور پاکستان آرمی، ان سب کا میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا، وہ تو سب سے پہلے کیا تھا میں نے، تو ان سب نے، ان سب کے جوانوں کا، ان سب زخمیوں کا خاص طور پہ، اور اس کے بعد وہ سارے شہید جو رینجرز کے اور پولیس کے اور جو کرٹیکل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی صحتیاب کریں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، بس کریں۔ آپ آج صرف سٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹ نیچے گئی ہے، صرف آج۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کل نیا دن نئی سوچ کے ساتھ جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ لوگ تھوڑا سا صبر پہ سپورٹ کرتے رہے، بیکاز ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کا تھا کہ بس بہت ساری چیزیں کر دو لیکن بڑے آرام سے چلنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میرا صرف اس میں یہ ہے کہ ہماری اسلام آباد کے شہریوں کو جو 2-3 دن پرابلم ہوئی ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم ان کو جتنا بھی زیادہ ریلیف دے سکیں دیں، لیکن ان کے سامنے سچویشن تھی، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں فرار ہو گئے ہیں، ایک منٹ رک جانا ہے، فرار ہو گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں؟ ابھی تک تو فرار ہیں۔ فرار ہے۔ اچھا سر، بڑی کریوسٹی ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا، یہ پلان تھا ان کو یہاں پہ آنے دینا ہے، اس کے بعد بالکل نہیں، کس طرح پلان یہ تھا ہم نے ان کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں، ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دی، اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں رستہ دے دیں تاکہ وہ رستہ بند ہے وہ والا رستہ ہم نے وہ رستہ کھول دیا، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے اس کے بعد ان کی جو آج کل ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی عمران خان کا فیصلہ اور میں ڈی چوک جاؤں گی۔ تو گرفتاریاں کتنی عمل میں لائی گئی ہیں اب تک؟ گرفتاریاں بات کر رہے ہیں 3 دن سے ایپیسوڈ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس طرح کی سچویشن دوبارہ اسلام آباد کے شہریوں کو فیس کرنی پڑے تو 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، مقدمہ درج ہوگا، نامزد کون ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ افغان نیشنلز کی یہاں بات ہو چکی ہے، کیا ڈپلومیٹک فائرز ہوگی دوبارہ سے؟ افغان نیشنلز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، ایک سیکنڈ، کوئی میرا نہیں خیال ایسی ملاقات کی اجازت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے میرے علم میں نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ دوبارہ آئیں گے، نہیں ایک اور چیز کچھ اور جو رینجر پرچے، ہاں بالکل، جو اریسٹ ہیں وہ کل آپ کو آئی جی صاحب بتا دیں گے ساری ڈیٹیل میں کہ کتنے پرچے ہوئے، کتنا سارا کچھ ہوا، اور جو آپ کا ہے کہ پرچے ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس کل تک آ جائے گی۔ میرے ہمیں کچھ پرچے رجسٹر ہونے کچھ ہو گئے تو وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی ساری۔ افغان نیشنلز کے اوپر چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد، آپ کو میرے خیال ایک میجر ڈیسیژن ہے جو انہوں نے
फाइनल कर लिया है, वो मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतला करेंगे इंशाल्लाह। मिसक्रिएंट्स के बारे में आपने कहा था कि आप वीडियोस मौजूद बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, अगले दिनों में शेयर करेंगे, जो अगवान हैं उनकी भी, जो बाकी हैं उनकी भी। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था किसी को भी उसको एनालाइज करके शेयर करने का, इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो। अब अगर आपने जो बात की थी कि दोपहर को कि मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म है, अभी भी तो ख़त्म। अब अगर उनकी तरफ से दोबारा अगर आपको एक्सेस होते हैं किया जाता है तो फिर उसके बाद कोई नई सूरत देखें, इस धौंस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धौंस धमकी करके देख भी ली, सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात देंगे, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात करना। लोग यहाँ पे इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे किसी दुश्मन मुल्क के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को के ऊपर अटैक किए गए, यहाँ पे लाख को नुकसान पहुँचाया गया, इसके ऊपर क्या कानून हरकत में आएगा? बिल्कुल आएगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब खुद उसको परसू कर रहे हैं, और मैं एकदम आ गया, वरना मैं उनको भी आ जाते तो वो भी अच्छा था, बट मैं उनको इत्तला नहीं या ना कर सका, वरना वो भी आते, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया है, वो CCTV वो ऑलरेडी मेंशन कर गए, वो ढूंढेंगे और हर एक के खिलाफ पर्चा देंगे, अलग-अलग पर्चा देंगे। नकवी साहब, आपने दिन को भी कहा था कि गरीब आदमी को मरवाने के लिए ही आते हैं, तो गरीब लोग तो आज अरेस्ट हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब पिछली दफ़ा भी आए और चुप करके चले गए, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात भी हैं, आज भी उन्होंने जिस तरह यहाँ पर किया, इन दोनों को किस तरह इस्लामाबाद से फरार होने दिया गया? मैं आपको बताऊँ, वो 1-2 लोग नहीं है, मैं अभी आपको इसके ऊपर अरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि मफरूर हैं, मैं अभी उसके ऊपर अगली बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके सामने वो भागे हैं, 1-2-3 नहीं, कई हज़ारों में भागे हैं, और हमने डेफिनेटली जो भी उसमें मेन लोग हैं उनको ज़रूर FIR में आपको नाम नज़र आ जाएंगे। पुलिस ताक़ुब कर रही है सर पीछे उनकी गाड़ियों का भी पकड़ा जा सके? बस मफरूर हैं तो हाँ, सर रेंजर्स का बता दीजिएगा। रेंजर्स जो कि आप कह रहे हैं कि एक नया सूरज देखेंगे, कंटेनर्स काफी दिनों मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, DC साहब साथ हैं, इंशाल्लाह ताला हम कुछ कंटेनर्स रात को, कुछ कल सुबह में 10-11 बजे तक सारी चीज़ें करेंगे। क्लीन अप प्रोग्राम में रेंजर्स से हमने देखा कि यहाँ से लेकर सेंटोरस के बाद तक भी जो रेंजर्स की जो एक्टिविटी रही है, जो क्लीन अप प्रोग्राम में जो उसमें वो आगे अमेजिंग थी, उसका रेंजर्स की परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, सुपर एक्सीलेंट थी। जिस तरह रेंजर्स ने काम किया माशाल्लाह, यहाँ के सेक्टर कमांडर, यहाँ के उसके बाद 26 नंबर पे हमारे वहाँ जो विंग कमांडर थे, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की सड़कों को बहाल करना तरजीह है। जुमेरात से स्कूल खुल जाएंगे, मोबाइल सर्विस भी सुबह तक बहाल कर दी जाएगी। PTI से कहता हूं अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे? अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया गया है। अफगान बाशिंदों के हवाले से जल्द ही फैसला जो किया गया है उसके बारे में बताएंगे, आगाह करेंगे। ठोस धमकी के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, पूरे इस्लामाबाद को सुबह तक मुकम्मल क्लियर कर देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अभी कुछ कंटेनर्स हटा रहे हैं, कुछ सवेरे तक हटाएंगे। इस्लामाबाद की सड़कों को बहाल करना हमारी तरजीह है। जितना मसला इस्लामाबाद के शहरियों को हुआ वो हमारी वजह से नहीं हुआ, हमने उन्हें महफूज रखने की पूरी कोशिश की। जुमेरात से स्कूल खुल जाएंगे, मोबाइल सर्विस वो सुबह तक बहाल कर दी जाएगी। PTI से कहता हूं अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे? किस तरह से स्टॉक क्रैश हुआ ये भी देखें, कितना नुकसान हुआ। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हैं या गिरफ्तार? जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। अफगान बाशिंदे भी इस सारे के सारे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए हैं। जब इस बारे में पूछा गया वजीर दाखिला से तो मोहसिन नकवी ने बताया कि अफगान बाशिंदों के बारे में, उनकी गिरफ्तारियों के बारे में, उन पर जो चार्जेस लगेंगे उसके बारे में फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के बारे में आदाद शुमार के साथ बहुत जल्द वाजे कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, आगाह कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात के बारे में जब सवाल किया गया तो मोहसिन नकवी ने कहा धौंस धमकी के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं। अब इलाके को, पूरे शहर को कैसे क्लियर किया जाएगा जब यह पूछा गया तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पूरे इस्लामाबाद को सुबह तक मुकम्मल क्लियर कर देंगे। फसाद में जो भी मुलव्विस है सब के खिलाफ FIRs होंगी, मुकदमे होंगे, पर्चे कटेंगे। 1-2 नहीं, PTI के हजारों
हजारों कारकुन भाग खड़े हुए, मोहसिन नकवी ने यह भी बताया। बिल्कुल, गुफ्तगू कर रहे थे मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की सड़कों को बहाल करना उनकी तरजीह है। जुमेरात से स्कूल खुल जाएंगे, मोबाइल सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। पीटीआई से कहता हूँ अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया। गुफ्तगू कर रहे थे और ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल के बारे में, ऑपरेशन के बारे में भी आगाह कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के बारे में जब सवाल तो उन्होंने कहा कि अभी तक फरार हैं। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया गया है। अफगान बाशिंदों के हवाले से जल्द फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। पूरे इस्लामाबाद को सुबह तक मुकम्मल क्लियर कर देंगे, ऐसी तरजीह है हमारी। उन्होंने कहा कि फसाद में जो भी मुलविस है सबके खिलाफ एफआईआर होंगी, एक तो नहीं। पीटीआई के हजारों कारकुन भागे हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि आज से सड़कें भी खुल जाएंगी। इस्लामाबाद की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को जो तकलीफ हुई है, जो मुश्किल हुई है, उन्होंने कहा कि वो हमारी वजह से कोई मुश्किल नहीं थी। हमने कोशिश की थी कि आवाम को कम से कम तकलीफ हो, लेकिन फिर भी हम आवाम से माजरत चाहते हैं कि आवाम को जिस तकलीफ का, जिस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मोहसिन नकवी डी चौक पहुंचे, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि जुमेरात से स्कूल खुल जाएंगे और इस्लामाबाद की सड़कों को बहाल करना उनकी तरजीह है। मोबाइल सर्विस के बारे में भी उन्होंने बताया कि मोबाइल सर्विस भी सुबह तक बहाल कर दी जाएगी। पीटीआई से भी उनकी जानिब से कहा गया कि अब बस कर दें, कब तक ऐसा करेंगे। अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी से मुतालिक जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी तक वो फरार हैं। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया गया है, जल्द इस फैसले के बारे में भी आगाह कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक दो नहीं, हजारों कारकुन पीटीआई के भागे हैं। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी, यहां पहुंचकर डी चौक पहुंचकर धरना देंगे ऐसी कॉल दी, फाइनल कॉल दी। और उसके बाद में जब ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो वो यहां से भाग खड़े हुए। पहले क़यादत